Good morning to all. Welcome students. From today we are going to start the biology standard 11 next chapter, that is the chapter number 5, cell structure and organization. Okay, as to the basic level we have already discussed all these topics in 9th standard, 10th standard and many more. Okay, so cell structure and organization, as generally हम देखते हैं कि first we have to describe the meaning of the chapter. Okay, so according to that, the cell structure and organization, what do you mean by it? Cell, what is cell? We have already discussed a lot more time that what is the cell. So cell is the basic structural and functional unit of life. We have already discussed all this topic. Means structural and function means, suppose we consider about the human body. Yes, human body, yes, it is made up of the cell. First it was a single cell and there was divide and differentiation and the formation of new cells. Okay, so cell को हम structural मतलब body का जो structure है, that is and functional body का जो functioning है, इसका basic unit जो है कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, और ये पूरी जो whole human body है, we are only talking about the human body, there are lot more organisms available. Okay, so structure और function जो अपने body का हो रहा है, that is depend on the cell. How does that cell performs? सेल जैसे परफॉर्म करेगी उसी हिसाब से अपनी बॉडी परफॉर्म करेगी. ओके, सो सेल का ग्रुप होता है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज का ग्रुप होता है, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स का ग्रुप होता है, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, एंड फ्रॉम दैट ऑर्गन सिस्टम द होल बॉडी इज फॉर्म्ड. ओके, सो दैट इज आई मीन टू से सेल, इट इज अ structural and functional unit of life. Okay, in this chapter we are going to discuss इसका structure actually होता कैसा है and इसका organization. How does the organelles inside the cell? एक सेल है तो सेल के अंदर भी बहुत सारे organelles होते हैं, तो उनका organization कैसा है, कैसे put up करके है, उनका particular organelles जो सेल के organelles है उनका function क्या होता है, all these topics we are going to discuss in this topic. Okay, the cell structure and organization. Okay, what is, so first I have mentioned the key points of the cell. Key points of the cell. So it is a structural and functional unit of life. As I have already told you, cell को क्या बोलते हैं, structure देने का काम भी cell से होता है and function करने का काम भी जो होता है whole body में cell से होता है. That's why it is called as a basic structural and functional unit. Base से जो structure और function करेगा उसका main जो unit है that is the cell. Okay, it can live independently or can form a whole life form. देखो बेटा, मैं आपको ह्यूमन बॉडी बोल रहा हूँ, बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ऑल आर द मेड अप ऑफ द सेल्स. आई एम जस्ट रिपीटिंग इट बिकॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, डोंट थिंक ओनली अबाउट द ह्यूमन बॉडी. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, all these are having the basic structural and functional unit that is the cell. Okay, it can live independently or can form a whole life form. Important point. What? सेल जो होती है ये इंडिपेंडेंटली भी पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमीबा है, पैरामेसियम है. ओके, पूरी उनकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल ही होती है. दैट्स व्हाई इट कैन लाइव इंडिपेंडेंटली, खुद इंडिपेंडेंट रह सकती है, और इट कैन फॉर्म अ होल लाइफ फॉर्म, पूरा लाइफ फॉर्म. सपोज द ह्यूमन बीइंग, पूरा लाइफ फॉर्म जो है ह्यूमन बीइंग का इट कैन बी फॉर्म्ड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी सीन ओनली थ्रू. हम जैसे बोलते हैं कि सेल हैज अ वेरी मच लिटिल साइज, वी कांट सी इट विद नेकेड आईज. खुली आंखों से उनको हम देख नहीं सकते. सो दैट्स व्हाई देयर आर 4 different type of microscopes are given. So it can be seen only through simple microscope, compound microscope, light microscope and electron microscope. So these are the 4 types. When there will be your practical, आपका जब practical होगा schools में, that time
वी कैन सी हमारे स्कूल में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन, ऑल दीज माइक्रोस्कोप्स आर अवेलेबल. Okay, so at that time we will see some cell through such type of microscope. Okay, for up to that we just remind, आपको सिर्फ ये 4 टाइप से उनको रिमाइंड करके रखना है. Okay, so in short I mean to say that सेल जो होती है बहुत छोटी साइज की होती है, खुली हाथों से हम उनको देख नहीं सकते. Okay, next it shape may be, now I have repeated, बहुत बार इसके पहले भी सेल पे डिस्कशन हुआ था. सो सेल डोंट हैव द प्रॉपर साइज. आपके टेक्स्ट बुक में एक सेल का सर्कुलर होता है, कुछ ओवल होता है, कुछ रेक्टेंगुलर होता है. ओके, सो डोंट कंसीडर इन योर माइंड दैट सेल हैज अ पर्टिकुलर शेप. इट डोंट हैव अ पर्टिकुलर शेप. इट मे बी स्फेरिकल, स्फीयर शेप की हो सकती है, ओवल हो सकती है अंडे जैसी, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, एकदम चपटी हो सकती है, polygonal you are, yes, this is a polygon. Okay, it may be of that type. triangular हो सकती है, ट्रायंगल के जैसे, एक आइसक्रीम कोन के जैसे हो सकती है, एक कॉलम के जैसे भी हो सकती है. मीन्स इन शॉर्ट इट डोंट हैव द प्रॉपर साइज. इसकी कुछ प्रॉपर साइज नहीं होती है. इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. व्हाट इट? ओके, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सेल फाउंड. अप टू दैट लॉट मोर सेल थ्योरीज आर बीइंग गिवन. आज तक के बहुत सारे सेल थ्योरीज आ चुकी है. सो अकॉर्डिंग टू दैट इन्वेंशन, उस इन्वेंशन के हिसाब से वी कैन से दैट स्मॉलेस्ट सेल जो आजकल पाई गई है दैट इज मे बी, सॉरी, इट इज इन माइक्रोप्लाज्मा. माइक्रोप्लाज्मा सेल जो होती है स्मॉलेस्ट सेल है, साइज इन 0.3 माइक्रोन. इतनी छोटी सेल आज तक के सबसे छोटी सेल पाई गई है. ओके, सो दीज टॉपिक्स. नेक्स्ट लॉन्गेस्ट सेल जो होती है अपनी बॉडी में नर्व सेल होती है. नर्व सेल, न्यूरॉन जिसको आप बोलते हो, इट पासेस मैसेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो नर्व सेल जो होती है ये लॉन्गेस्ट सेल है एंड इट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर long. Okay, and the largest cell, सबसे बड़ी जो सेल आज तक के पाई गई है that is the ostrich egg. ostrich नाम का जो पंछी होता है, बर्ड होता है, उसकी सेल की, उसके एग्स की सेल की साइज जो है it is the largest cell size till date found. It may be another. Okay, in future अगर कुछ नए इन्वेंशंस आते हैं so these numbers can be changed. Okay, so smallest, longest and largest, all these topics we have to remind because in MCQs NEET, MST, CET आप जो भी एग्जाम देंगे तो such type of questions are being asked. Smallest, which is the smallest site you ever found? आज तक के सबसे स्मॉलेस्ट साइज की जो सेल है वो कौन सी है? लॉन्गेस्ट साइज की सेल कौन सी है? लार्जेस्ट सेल कौन सी है? सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड. सो यू जस्ट रिमाइंड इट, टेक स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट साइट. सेल थ्योरी, इट वाज गिवन बाय श्वान सेल्डन. द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी जो सेल थ्योरी है ये किसने दी है? श्वान सेल्डन नाम के साइंटिस्ट ने दी है. आफ्टर दैट उस थ्योरी में कुछ नया एडिशन हुआ है एंड दैट थ्योरी वाज कॉल्ड एज अ मॉडर्न सेल थ्योरी इन 1855 एंड इट वाज गिवन बाय द रुडोल्फ वर्चो. It was given by the Rudolf Virchow. Okay, so these 2 points also may be asked in your NEET and MST exam, so mention it. Okay, next point in a cell theory, sorry, in a cell we are going to discuss that is the totipotency. बहुत बार ये आपको टॉपिक आएगा. देखो सिंपल टॉपिक है, कंफ्यूज होना नहीं है. टोटिपोटेंसी में सिंपली यू कैन रिमाइंड अ कैपेसिटी, क्षमता. एक पर्टिकुलर सेल की क्षमता क्या है, एबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, उसको ही एक टोटिपोटेंसी बोला जाता है. ओके, सिंपली कैपेसिटी ऑफ सेल टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट नंबर ऑफ टाइम्स टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गॅनिझम. बघा, अगदी सोप्या भाषेमध्ये, एकदम सोप्या भाषेत सांगितलेलं आहे, एका सेलची कॅपॅसिटी टू डिवाइड, एकापासून 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6. ओके, टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट, खुद को पहले डिवाइड करना फिर
डिफरेंट करना, एक से दूसरे को अलग करना। ये जो कैपेसिटी होती है ये बहुत बार होती है, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, करेक्ट? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टोटिपोटेंसी। देखो सिंपली व्हाट एग्जांपल इज गिविंग, फर्स्ट मैं जो अभी ऑर्गेनिज्म आपके सामने खड़ा हूं आपको टीच कर रहा हूं, इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। मिलियंस ऑफ सेल्स से ऑर्गेनिज्म बना है, तो डायरेक्टली मिलियन में इतना ही हो गया डायरेक्ट बचपन से? नो, फर्स्ट इट वाज अ सिंगल सेल इन द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के अंदर, गर्भाशय के अंदर एक पहले सिंगल सेल था। नाउ दैट सेल वाज टोटिपोटेंट, दैट सेल वाज टोटिपोटेंट मींस उस सेल की एक कैपेसिटी थी कि वो खुद को डिवाइड कर सकती थी एंड डिफरेंशिएट कर सकती थी। दैट्स व्हाई सिंगल सेल वाज डिवाइडेड इनटू 2, 2 into 4, 4 into 8 and this chain was continuous, that is the totipotency। एक सिंगल सेल की कैपेसिटी टू डिवाइड, को पहले डिवाइड करना फिर डिफरेंशिएट करना, एक सेल से दूसरे सेल को अलग करना, दैट इज कॉल्ड एज अ totipotency to form a complete organism. Got it? Okay. Next, cell has a complete genetic information that is called as a totipotent. Means तो सेल को हम टोटिपोटेंट भी बोलते हैं या टोटिपोटेंसी भी बोलते हैं। सेल की एक कैपेसिटी होती है, सो इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पास ऑन हो रही है फ्रॉम मदर टू द नेक्स्ट जनरेशन, ओके, सो it is only dependent on the information present in that particular cell। उस सेल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है उस पर डिपेंड होता है। ओके, टोटिपोटेंट सेल्स आर टर्म्ड एज अ स्टेम सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटिपोटेंट सेल्स जो होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। स्टेम्स का काम क्या होता है? इन प्लांट एक स्टेम से फिर दूसरी स्टेम आती है, दूसरे स्टेम से तीसरी स्टेम आती है, स्टेम्स बढ़ती जाती है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ होल प्लांट। एज सेम एज टोटिपोटेंट सेल जो होता है, ऐसे सेल बॉडी में जो होते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है कि टू डिफरेंशिएट एंड डिवाइड, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ स्टेम सेल। वो एक प्रकार से स्टेम्स का काम करते हैं। स्टेम सेल्स हैव ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग क्योर फॉर डिजीजेस। स्टेम सेल्स जो होते हैं दे आर हैविंग अ ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशंस। स्टेम सेल्स ऐसे सेल जो डिवाइड एंड डिफरेंशिएट हो सकते हैं, वो सेल कुछ डिजीजेस को क्योर करने का भी काम करते हैं। बिकॉज हाउ, आपको पूछेंगे सर ने बता दिया, बट हाउ? बिकॉज कुछ स्टेम सेल्स जो होते हैं दे आर पास्ट इन हेरिडेटरी, हमारे फादर मदर से इनहेरिटेंस के थ्रू हमें आते हैं। और हमने पढ़ा है या आप पढ़ोगे फ्यूचर में कि कुछ सेल्स या कुछ इनहेरिटरी डिजीजेस ऐसे होते हैं जो माँ बाप से बच्चों में आते हैं एंड फॉर सच डिजीजेस देयर इज अ नीड ऑफ क्योर, उनको ठीक करने की जरूरत होती है एंड सच स्टेम्स आर आल्सो कैपेबल टू फॉर्म और टू अवॉइड सच टाइप ऑफ डिजीजेस। ओके, दैट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म। Do you have any confusion? I think there will be no confusion. If you have, you can comment me on the comment section. Okay, got it? Take a screenshot, note down in your book and try to form a new questions. इनमें से कुछ questions और बनते हैं क्या, ये आपको खुद होके देखना है। Okay, thank you. We will see the next topic in the next lecture.